Hey, hi guys. Good morning, good afternoon, and welcome to the third session of the day. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. What you get on Unacademy, you will get daily live classes on Unacademy. You will get structured courses on Unacademy. Live test and quiz is also immediately after this session, that is by 3 p.m. We are going to conduct an awesome live test on Unacademy Learning app. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. For that, you need to download the Unacademy Learning app from the either Google Play Store or from the App Store. This is my Telegram channel. Please subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. Please follow me on Unacademy and please dedicate your hats to me on Unacademy. This is about me, guys. You already know about me. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them. Thank you very much, guys. On Unacademy, we will give you comprehensive syllabus syllabus coverage. So please remember that if you want to study in a proper manner or आपको अगर पूरा coverage चाहिए तो you should be on Unacademy Plus or Iconic, and while doing that you should be using SKUS code because this code will give you 10% discount. When you are going on Plus subscription, guys, तो Plus में आपको live class मिलता है, test series मिलती है, unlimited practice और structured schedule मिलता है. And instead of paying this much for Plus, you can simply use this viral code of success SKUS that will give you 10% discount, and you will be paying less for Plus subscription. And when you are going on Iconic subscription, guys, Iconic के case में along with the benefits of Plus, you will get extra personal codes, daily means question and answer practice, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको आइकॉनिक पे इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस यू कैन सिंपली यूज SKUS code that will give you 10% discount and you can go ahead with this much amount. This is for optional subscription, guys. You can check it out. Again, here SKUS code will give you 10% discount and you will be paying this much only. Okay, guys, just give me a minute. Just give me a minute. Sorry for the small glitch, guys. Okay, let's start on class again. So what I'm talking about the options that are available with Unacademy. These are the options that are available with Unacademy. कॉम्बैट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. आपकी जो प्रीलिम्स है वो लाइक 6 मंथ अवे. इसके लिए हमने 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं. वन इनिशिएटिव इज ऑन यूट्यूब जिसे हम इम्पल्स कह रहे हैं. यू आर एंजॉइंग द इम्पल्स ऑलरेडी. And another initiative is Champions Batch that is launched on Plus subscription. Okay guys, ये हमने Plus पे लॉन्च की हुई है और ये इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे. हमने ऑलरेडी 21 के लिए 3 बैचेस लॉन्च किए, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, और 22 के लिए भी 3 बैचेस है और 23 के लिए भी 3 बैचेस है. यू कैन चेक इट आउट एंड अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट यू कैन ज्वाइन एनी बैच. फाइन. देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन आइकॉनिक, गाइस, यू शुड गो देयर राइट नाउ बिकॉज वहां पे आइकॉनिक की प्राइस राइज होने वाली है और इसमें आप जब भी आइकॉनिक पे जाओगे अगेन यू आर गोइंग टू यूज वायरल कोड ऑफ सक्सेस दैट इज SKUS. ओके. ये मेरी ATM की क्लास है. आज ATM की क्लास नहीं हो पाई तो वही टेस्ट आज हम 3 PM को कंडक्ट करने वाले हैं, तो बी देयर ऑन टाइम. देन ये मेरी प्लस पे स्पेस टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है. डू वॉच एंड एंजॉय एंड आपके स्पेस के सारे टॉपिक क्लियर कर लो. इकोटोन हमने कर लिया, इकोसिस्टम हमने कर लिया, एनवायरनमेंट हमने कर लिया. देन हमने कल इकोटोन फॉर्मेशन क्या होता है, इकोटोन के फीचर्स क्या होते हैं, इकोटोन क्या होता है, इकोक्लाइन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया विथ एग्जांपल्स. उसमें क्राइस्टमस का एग्जांपल हमने देखा, लोम्बोक स्ट्रेट का एग्जांपल हमने देखा. इसमें आपको पता चल गया कि लोम्बोक स्ट्रेट जो है वो बाली और लोम्बोक इन 2 आइसलैंड्स के बीच में है. उसके बाद मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया था कि हाँ एग्जाम्पल में ये पूरा हमारा हो गया था. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोटोन के बाद. फिर हमने एज इफेक्ट सर्च लर्न किया था. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एज इफेक्ट, वेयर यू कैन फाइंड एज इफेक्ट? नॉर्मली एज इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है आप लोग बताइए जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, क्योंकि आपको अगर जैसे इकोटोन, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई, उसी तरह से आपका ये एज इफेक्ट भी क्लियर और परफेक्ट होना चाहिए. चलो बताओ एज इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, जल्दी से बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस. गुड आफ्टरनून सविता, वेरी गुड आफ्टरनून सविता. आज 3 PM को ज्वाइन करो टेस्ट को, ठीक है, इस क्लास के बाद.
यस, इकोटोन में, या हम ऐसा कह सकते हैं एज इफेक्ट हमें कहाँ दिखाई देता है। एज इफेक्ट हमें दो इकोसिस्टम के एज जहां पे ओवरलैप होते हैं, दो इकोसिस्टम के एज जहां पे ओवरलैप होते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है, एज इफेक्ट मिलता है। कैन आई से दिस? यस, डेफिनेटली आई कैन से दैट। ओके, क्लियर। देन एज इफेक्ट, ये जो है ये एज स्पीसीज हमें इसी एज इफेक्ट की वजह से मिलती है। आपको मैंने एज स्पीसीज के एग्जांपल दिए थे जिसमें बर्ड्स थे, राइट। तो ये एज इफेक्ट, एज स्पीसीज, एज इफेक्ट, एज स्पीसीज, इकोटोन और एज में क्या डिफरेंस है। देन हमने, हाँ मुझे एक बात बताइए, जो इकोटोन्स होते हैं दे कंटेन ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एंड हैव सिग्निफिकेंटली ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। व्हाई इकोटोन्स हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी? इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे। उसमें पहला रीजन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, रिसोर्सेज, क्योंकि इकोटोन से जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे कैन एक्सेस रिसोर्सेज इन बोथ द इकोसिस्टम। तो ये एक रीजन है कि आपको वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। व्हाट इज अनदर रीजन? व्हाट इज अनदर रीजन? Resource abundance, right Ramandeep Kaur? This is the first reason. What about the second reason? चलो बताओ सेकंड रीजन क्या है। तो ये रहा आपका सेकंड रीजन, फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट। Sir, in age, yes, age species, no, no, age species can be the unique species that is in the ecotone, or it can be a species from nearby ecosystem. दोनों में से कोई भी होती है, लेकिन एज स्पीसीज इकोटोन में उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। राहुल दास। सेकेंड रीजन है कि फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट। थर्ड रीजन है इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। फोर्थ रीजन है इंक्रीज्ड प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड फिफ्थ रीजन है एनर्जी नेट, या एनर्जी नेट फॉर्म करता है इकोटोन, ठीक है। और ये हो गया आपका। उसके बाद हमने एग्जांपल दिए थे, मैंग्रोव इकोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन, रीफ इकोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन, राइपेरियन एरियाज आर एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ट्रेडिशनली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, ट्रेडिशनली ह्यूमन सेटलमेंट आपको ट्रांजिशन जोन में ही मिलती है। इकोसिस्टम के ट्रांजिशन जोन में ही आपको क्या मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलती है। ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, और ये अब आप हम आते हैं नीश में। अब नीश पे आपको मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा था, उसी से लिंक ये है, यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं, फंक्शनल रोल एंड प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। राहुल दास, एनर्जी पोर्शन का सिंपल सा मीनिंग है, मैं आपको आंखें बंद करके बता रहा हूँ। सुनिए, दो इकोसिस्टम है, इन दो इकोसिस्टम में मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। लेकिन ये एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, वो इकोटोन के थ्रू होता है। इसलिए इकोटोन एक्ट्स एज अ एनर्जी नेट बिटवीन टू इकोसिस्टम, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट इकोटोन में एज स्पीसीज को मिलता है। इसलिए इकोटोन एज इफेक्ट शो करती है। इसलिए इकोटोन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसलिए इकोटोन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ओके राहुल दास। कीवर्ड यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, नीश कहते हैं। क्लियर। यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, उसे हम नीश कहते हैं। ओके, अब ये नीश जो है लिविंग भी हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैन अ ह्यूमन बीइंग लिव विदाउट एनी पेट? आप कहीं पे भी जाइए, हर एक पर्सन के घर पे आपको कोई ना कोई पेट मिलेगा। किसी के घर पे डॉग मिलेगा, किसी के घर पे कैट मिलेगा, किसी के घर पे बर्ड्स मिलेंगे, किसी के घर पे टॉर्टॉइस मिलेगा, किसी के घर पे टर्टल मिलेगा। और अगर आप फार्मर के घर पे जाओगे तो आपको काउज, बफेलोज एंड ऑक्स ये सब मिलेगा। मतलब ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा साथ में रखता है। तो वो बायोलॉजिकल नीश हुआ एक टाइप का, ठीक है, बायोलॉजिकल। देन फिजिकल, अगर हम फिजिकल नीश की बात करें, हमारी ही खुद की एग्जांपल लेते हैं, हम प्रेफर करते हैं ऐसा फिजिकल एरिया जहां पे हमें वाटर, फूड और लाइट एब्यूडेंटली अवेलेबल हो। ओके,
मतलब शेल्टर, वाटर एंड फूड, ये तीन चीजें जहां पे अवेलेबल है वो उसे हम क्या बनाते हैं, हमारा फिजिकल नीश बनाते हैं। या फिर केमिकल, केमिकल नीश भी हमारी यूनिक होती है। कैसे? हम जो है ह्यूमंस बीइंग, हम ऐसा देखते हैं कि फ्रेश वाटर हो, देन सॉइल में एसिडिटी ज्यादा ना हो, फेवरेबल और फर्टाइल सॉइल हो। सॉइल की फर्टिलिटी केमिकल पे ही डिपेंडेंट है ना, तो ये सब चीजें हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल नीश। उसके बाद ये बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, उसे कहते हैं नीश। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पोलर बियर की नीश क्या है? व्हाट इज द नीश ऑफ पोलर बियर? पोलर बियर की नीश है सी आइस। विदाउट सी आइस पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव। तो ये जो सी आइस हुआ ना, इट इज द फिजिकल नीश ऑफ पोलर बियर। इट इज द फिजिकल नीश ऑफ पोलर बियर। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है पोलर बियर को सरवाइव करने के लिए। उसी तरह अगर मैं आपको फिजिकल नीश ऑफ सुंदरी ट्री बताऊं, सुंदरी ट्री, तो सुंदरी ट्री की फिजिकल नीश है मार्शी एरिया, मार्शी एरिया विथ ब्रैकिश वाटर, मार्शी एरिया विद ब्रैकिश वाटर। ये हो गया सुंदरी ट्री की फिजिकल नीश हो गई, ब्रैकिश वाटर, सॉरी, ठीक है। तो ये फिजिकल नीश का एग्जांपल हुआ। ये सील एज अ फूड, दैट इज द फूड नीश ऑफ द पोलर बियर। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, नीश कैन बी बायोलॉजिकल, नीश कैन बी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल फैक्टर्स, और नीश कैन बी केमिकल फैक्टर। मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर भी नीश फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फिजिकल फैक्टर भी नीश फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और केमिकल फैक्टर भी नीश फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। और ये जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फैक्टर जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिकल फैक्टर जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। नीश इज बेसिकली, it is something that is required for survival of an organism. It is something that is required for survival of an organism. उसे हम कहते हैं niche. Is it clear, guys? Is it clear to everyone? आगे चलते, a niche is unique for a species. हर एक species के लिए niche unique होती है। मैं तो ये कहूंगा niche is unique for even an individual. It is unique for an individual. हर एक individual का अपना अलग ही niche होता है। अगर आपको niche की concept समझ नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में मॉम, डैड, आप और आपकी ब्रदर या फिर आपके सिस्टर, ये सब रहते होंगे। कितने लोग तो हर किसी की फैमिली में होते हैं, कम ज्यादा किसी के घर पे मॉम नहीं होगी तो किसी के घर पे डैड नहीं होगी। लाइक इन माय केस डैड नहीं है, सिर्फ मॉम है। सो ये कॉमन, मैंने आपको एग्जांपल दी। देखिए घर में भी हमारी जो बैठने की जगह होती है ना, वो फिक्स होती है। अगर हम टीवी देखने बैठने वाले हैं तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे ही बैठकर टीवी देखते हैं। इवन टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखना है, हर किसी की लाइक डिसलाइक अलग होते हैं। जब हम सोते हैं तो किस तरीके से सोना है, हर किसी का सोने का तरीका अलग है। हर किसी को बेड की किस साइड में सोना पसंद है वो भी अलग है। तो यहाँ पे भी हम, इवन हमारे घर पे हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीश है, एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट, लाइक एटलीस्ट सर्वाइवल की बात नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते, लेकिन विदाउट दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल। अगर आपने बेड की जगह बदल दी तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको ना अपने बेड के अलावा कहीं और नींद भी नहीं आती। यूपीएससी वाले कहीं पे भी सो सकते हैं, क्योंकि उनको बस नींद चाहिए, वो कहीं पे भी आ जाए। लेकिन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, तो ये नीश का मैंने आपको एग्जांपल दिया। नीश जो होती है ना गाइस, ये हमें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें हेल्थी रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए पहले, व्हाट इज नीश? इट इज द यूनिक फंक्शनल एंड रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज एंड इन एन इकोसिस्टम, है ना। जैसे इसमें भी आपको एक यूनिक फंक्शनल रोल की बात बताता हूँ। आपके घर पे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? तो आपकी जो मॉम है, डैड है, फ्रेंड्स है, और फिर आपके जो ब्रदर या सिस्टर है ना, वो अभी से आपको क्या कहते हैं उसे, वो मस्का लगा रहे होंगे कि भाई तू ऑफिसर बनने के बाद जो है ना मेरा ये काम कर दे। और आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी मामा, मेरी मामी, लाइक दैट, कोई भी, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। वो मतलब प्राउड होके बताते हैं ये चीज, जो आपके क्लोज रिलेटिव है वो। तो आपके फैमिली या रिलेटिव में एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी एक स्पेशल नीश है। आप यूपीएससी का अच्छे से स्टडी करो। आप जब एंटर करोगे ना किसी भी डिस्कशन में फैमिली के,
अगर वो डिस्कशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल इश्यूज पे हो रहा है कंट्री के, तो आप उसमें अपने आप पार्टिसिपेट करते हो और बाकी के लोग चुप बैठ जाते हैं जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, क्योंकि उनसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है पॉलिटिकल इश्यूज का, सोशल इश्यूज का, इकोनॉमिकल इश्यूज का। तो वो हो गई आपकी नीश। वो क्या हो गई? आपकी नीश हो गई आपके फैमिली में। तो आपके फैमिली में एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपका कोई रोल है या नहीं? फंक्शनल रोल, यस। आपका रोल आपका फैमिली मेंबर को कोई भी और फैमिली मेंबर रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। देन आपकी प्लेस है आपके फैमिली में, एक यूनिक स्पेस है, प्लेस है, यस, आपकी यूनिक प्लेस है आपके फैमिली में। क्या कोई आपकी प्लेस रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने घर को एक इकोसिस्टम कहा और एक आप स्पीसीज हो खुद, तो आपका एक यूनिक फंक्शनल रोल है और यूनिक प्लेस है उस इकोसिस्टम कॉल्ड घर में। तो ये होगी आपकी नीश। आपको वहां से निकाल दो, सब एम्प्टी एम्प्टी लगेगा। यू आर गेटिंग मी? क्लियर? So I hope you are getting it. Niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. Niche is a unique functional role or place of a species in an ecosystem. अब ये जो niche है ना, it is a description. Niche में हम क्या क्या describe करते हैं? Biological factor describe करते हैं, physical factor describe करते हैं, chemical factor describe करते हैं, जो कि उस species को survive करने के लिए जरूरी है, हेल्दी रहने के लिए जरूरी है और रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। चलिए आगे। A niche is unique for a species, which means no two species have exact identical niche. This statement, this statement is your prelims statement. Very, very important. Very, very important statement for your preliminary examination, guys. Please इस स्टेटमेंट को याद रखिए। नीश इज यूनिक फॉर एवरी स्पीसीज, इट कैन नॉट बी आइडेंटिकल फॉर टू स्पीसीज। या फिर मैं आपको और एक बात बताता हूँ, अलग अलग स्पीसीज को दो स्पीसीज आइडेंटिकल नीश नहीं हो सकती। आपने आइडेंटिकल ट्विंस सुने हैं ना? आइडेंटिकल ट्विंस। अब ये आइडेंटिकल ट्विंस होकर भी उनके लाइक्स और डिसलाइक अलग हो सकते हैं, उनका घर में रहने की प्लेस अलग हो सकती है, उनके घर में बैठने की प्लेस अलग हो सकती है, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तो अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस के इंटरेस्ट मैच नहीं होते, तो दो अलग अलग स्पीसीज आइडेंटिकल नीश उनकी कैसे होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब मैं टर्म यूज करता हूँ ना नीश, नीश का मतलब है बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। यू आर गेटिंग मी गाइस? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट चल रहा है और आपको ये नीश एक बार समझ में आ गया ना, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गई, यू कैन यूज एंड अप्लाई दैट कंसेप्ट एंड आंसर मेनी क्वेश्चंस। चलिए आगे। Niche plays an important role in conservation of organism. Very very good. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ niche in conservation, what is the importance of niche in conservation, or without the knowledge of niche can we conserve an living organism? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। Do you know what is the habitat niche of polar bear? Habitat niche of polar bear is sea ice. Do you know what is the food niche of polar bear? Food niche of polar bear is seal or blubber rich animals. Blubber rich animals. Okay. ये एक हो गया फूड नीच, ये हो गई इसकी हैबिटेट नीच, सी आइस। ओके, फिर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द फिजिकल या टेम्परेचर नीच ऑफ द पोलर बियर? टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी इन द माइनस। ओके, टेम्परेचर नीच भी है, ये टेम्परेचर वाला पार्ट ये इसकी फिजिकल नीच हो गई, ये इसकी फिजिकल नीच हो गई, ये इसकी फिजिकल नीच हो गई। ओके, और ये जो सील वाला पार्ट है ये इसकी बायोलॉजिकल नीच हो गई, ये इसकी क्या हो गई? बायोलॉजिकल नीच। तो जब आपको पोलर बियर के बारे में ये सब चीजें पता होगी तभी तो आप पोलर बियर को कंजर्व कर पाओगे ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंजर्व अ पोलर बियर। मुझे बताइए, अगर हमें किसी भी स्पीसीज को एक्चुअल में कंजर्व करना है, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज बेटर और इन सिटू कंजर्वेशन इज बेटर? विच कंजर्वेशन इज बेटर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट और कंजर्व अ स्पीसीज? चलो बताओ। यस रमनदीप, यू आर राइट कि हमें स्पीसीज की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, तभी तो हम उस स्पीसीज के
कंजर्वेशन में उनको मतलब हेल्प आउट कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर, क्विकली बता दो। कौन सा कंजर्वेशन बेस्ट है, इन सिटू या एक्स सिटू? इन सिटू कंजर्वेशन। तो मुझे बताइए इन सिटू कंजर्वेशन में डू वी नीड टू क्रिएट नीश आर्टिफिशियली? We need not to create niche artificially, but in case of ex situ conservation we need to create niche artificially, and that's why it is bit difficult to create exact conditions of that living organisms niche artificially। इसीलिए जब आप मुंबई में पेंगुइन को लेकर आते हो, जब आप मुंबई में एक पेंगुइन को लेकर आते हो तो वो पेंगुइन की डेथ होती है, क्योंकि मुंबई इज इन ट्रॉपिकल एरिया, दैट टू कोस्टल एरिया में है, और पेंगुइन रहता है नॉर्थ या साउथ पोल में। उसी तरह अगर आप पोलर बियर को इंडिया में लेकर आओगे तो पोलर बियर विल डाई इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द नीश ऑफ द पोलर बियर। ओके, सो दिस इज अबाउट द नीश। याद रखिए, नीश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसे एकदम अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए। नीश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दो स्पीसीज की नीश कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। नीश बायोलॉजिकल हो सकती है, नीश फिजिकल हो सकती है, नीश केमिकल हो सकती है, और नीश का मतलब होता है इट इज यूनिक। ऑलवेज नीश इज यूनिक and it is the unique functional role or place of a species in an ecosystem। ये स्लाइड क्लियर होगी, सभी को क्लियर होगी। ईच एंड एवरी लाइन ऑन दिस स्लाइड, each and every line on this slide is the probable statement of your preliminary examination। We are going to the next topic, next slide। Okay, if we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirements of the species and should ensure that all requirements of its niche are fulfilled। अब आपके लिए next question है, we are planning to shift lions, from Gir National Park to where? We are planning to shift lions from Gir National Park of Gujarat to, बताओ कहाँ लेकर जा रहे हैं हम इनको, कहाँ लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं हम lions को? Yes, I am waiting guys, please answer। इस I know there is a lack of 17 seconds, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, आप तक मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं पहुँच लूँगा। I will bear, तब तक मैं रोकूंगा, डोंट वरी। हो गया आंसर, रेडी हो गया आपका? लेट्स सी कितने लोगों ने आंसर दिया है। हाँ यस राहुल, लेकिन कहा नहीं पता। चलिए हम आपको बताते, कुनाल नेशनल पार्क, ज्योतिश्वरा रेड्डी ने बताया है, इट इज इन मध्य प्रदेश, कभी नॉट इन अमेरिका, इट इज इन मध्य प्रदेश। और कूनो पालनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइस, कूनो मैं आपको यहां बताता हूं, कूनो पालनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, लॉयन तो हम शिफ्ट कर रहे थे, आई विल शेयर यू द इमेज। We are planning to shift lions from the Gir National Park to Kuno Palanpur Wildlife Sanctuary। Okay, just give me a minute। Yes, here is the map, just check it out। Okay, just a minute। ये देख लीजिए, कूनो पालनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, गिर से हम इनको यहाँ लेकर आ रहे हैं। अब बाकी इतने सारे फॉरेस्ट है, हम कूनो में ही क्यों लेकर जा रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग देम इन कूनो? बिकॉज जो नीश है कूनो में, जो भी आपको एनवायरमेंट मिलेगा वो नियरली आइडेंटिकल है गिर नेशनल पार्क के साथ। ओके, इट इज नियरली आइडेंटिकल। हाँ यस गाइज, आई एम बैक। सो यहाँ देखिए, क्योंकि हमें उसके जो भी नीश है लॉयन की वो हमें पता है, और वो नीश कूनो पालनपुर में मिलती है, इसलिए हमने उसको वहां शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। ओके, नीश के अलग अलग टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है हैबिटेट नीश, दूसरी टाइप होती है फूड नीश, मैंने आपको बता दिया। तीसरी टाइप होती है रिप्रोडक्टिव नीश। रिप्रोडक्टिव नीश का मतलब क्या होता है? टाइम, फिजिकल एनवायरमेंट, मतलब वो हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस।
रिप्रोडक्शन का भी एग्जैक्ट टाइम होता है, प्लेस भी होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसे रिप्रोडक्टिव नीश कहते हैं। और फिजिकल एंड केमिकल नीश भी होती है, जिसमें टेम्परेचर आता है जैसे पोलर बियर का, लैंडस्केप आता है जैसे पोलर बियर का, लैंड स्लोप आता है जैसे आपको एक माउंटेन गोट मिलती है। ये जो माउंटेन गोट है ना, दिस माउंटेन गोट कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेन एरियाज, ये लैंड स्लो मतलब माउंटेनस रीजन ही चाहिए, तो ये एक हो गया। देन ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट, देयर आर मेनी अदर रिक्वायरमेंट। तो ये सारे टाइप्स है आपके नीड्स के, हैबिटेट, फूड, रिप्रोडक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। In ecology, the match of a species to a specific environmental condition. In ecology, the match of a species to specific environmental condition. उसे गुड आफ्टरनून अनुराग कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए फिर से एक बार, ये टाइप नीश सभी को समझ में आ गया, व्हाट इज नीश, एंड सभी को ये समझ में आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश। अब मैं आपको लेकर जाता हूं आगे। तो देखिए नीश इन इकोलॉजी, अ नीश इज द, गाइस वी विल डू वन थिंग, देयर इज अ वेरी अगर आप लोगों को नीश और टाइप्स ऑफ नीश समझ में आ गई है तो वी विल स्टॉप हियर टुडे। आज हम इतने यहीं पे रुकते हैं, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो बिकॉज देयर इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड। सो गाइस you need to remember this code SKUS for 10% discount on Unacademy subscription। देन आपको ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल। प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड डेडिकेट योर हैट्स टू मी ऑन अनअकैडमी। That's it for the day, guys. Thank you very much. We are meeting again at 3 p.m. on Unacademy Learning app. Okay, at 3 p.m. on Unacademy Learning app with an awesome live come mock test। जो मॉर्निंग की टेस्ट है वो और इवनिंग की दोनों टेस्ट हम साथ लेंगे आज 3 बजे। तो बी रेडी, आराम कर लो 1 घंटे का, और 3 बजे हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेंगे। टिल दैट टाइम बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।